Hello, children. Welcome back to your science class 4th. And what we were studying in our last video was adaptation in plants. Last time we studied about adaptation in plants, which type? Water plants or the aquatic plants. So take out your science book, and today we are going to study the next kind of adaptation, which is adaptation in terrestrial plants. Now, this is something new word for you all, terrestrial. So, the simple meaning of terrestrial is land. So, the plant that grows on land are called terrestrial plant. Right? You all have studied there are many forms of land like mountain and hilly areas, plain, desert, coastal areas, marshy areas. So you must be wondering, if there are so many types of land forms, there must be many types of plants as well, right? Which is being adapted as per the surrounding of their environment. So let's study. As per the landforms, there are how many types of terrestrial plants? See, in this picture you can see terrestrial plant is being divided into 5 types. What are those 5 types? The plants which grows on the mountains are having different types of adaptation. So it is a mountainous plant. The plants which grows in desert, the plants which grows in plains, similarly the plants which grows in coastal regions and the marshy areas. So we'll start from the plant that grows on the mountain. Number 1, the plants that grows on the mountains. अब प्लांट जो माउंटेन पे हो रहे हैं उनमें क्या adaptations होना चाहिए? The plants which are growing on the mountains must be having some kind of adaptation which let them grow in the mountainous or the hilly areas, and the adaptation suits them to grow in that particular areas. Trees and small plants such as, which are those plants? Fern and mosses grows on the mountains. मॉसेस तो आपने वैसे बारिश के दिनों में दीवारों पे भी उगती हुई देखी होंगी, बट पहाड़ों पे मॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. Trees are generally tall. Mountainous region में you will be finding tall trees, straight and cone shaped. अब cone shape का advantage क्या होता है? This is normally, you see this cone shape, this is pine, this is fir. So what is the advantages of tree being in the cone shape? The cone shape helps the snow to easily slide off the branches, and their leaves are needle like. सुई जैसे उनकी लीव्स होती हैं, because it prevent any damage caused by the snow. Broad leaf होंगी तो it may get rot because of the snowfall इतना होता है mountain पे. So the leaves are needle like, right? Some trees even do not bear flowers but have cones with seeds. Such trees are called conifers. So the trees which grows in the mountainous regions are called conifers or the coniferous trees. ज़्यादातर कॉनिफर्स में पूरे साल लीव्स रहती हैं. दे डोंट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. इसलिए उनको हम एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेडार, पाइन एंड फर. राइट? एंड coming to the next slide, adaptation of some plants like tea. टी कहाँ पे ग्रो होते हैं? चाय कहाँ ग्रो होती है? नॉर्मली टी प्लांट्स ग्रोज इन द हिली रीजन्स. हिली एरिया में ग्रोज होते हैं, एंड
These plants need heavy rain. इनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत तो होती है, but they don't want water to remain near their roots. उनको अपने रूट्स में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसीलिए क्या होता है, दे ग्रो ओनली ऑन द हिल स्लोप. अगर स्लोप पे रहेंगे तो पानी विल ड्रेन ऑफ, पानी अपने आप ड्रेन ऑफ हो जाएगा. These hills provide suitable condition for the growth of the tea plant. So this was all about the trees which grows on the mountains and hills. Now coming to the second, plant in plains. प्लेन कौन सी ज़मीन होती है? जहाँ हम रहते हैं, समतल भूमि, जहाँ पर अनइवन सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है. तो प्लेन जगह पर जो ट्रीज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? प्लांट दैट ग्रोज इन द प्लेन हैव मेनी ब्रांचेस एंड ब्रॉड लीव्स. हम अपने आसपास देखते हैं प्लांट्स को, किस टाइप के प्लांट्स देखते हैं? हमें मैंगो ट्री दिखते हैं, नीम दिखते हैं, बनाना दिखते हैं, पीपल दिखता है. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये नीडल लाइक लीव्स नहीं होती हैं, इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं. दूसरा, और क्या आपने देखा, इनमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं. जैसे कि जब आप पहाड़ों की बात कर रहे थे तो वहाँ पे टॉल ट्रीज़ होते थे, बट वो कॉनिफेरस कोन शेप में रहते थे, तो उनको इसलिए कॉनिफेरस भी बोलते थे. अब यहाँ पर जो है वो अम्ब्रेला शेप के ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. So these kind of trees have the adaptation to grow in the plain areas, right? And broad leaves उनकी क्यों होती हैं? क्योंकि उनको properly sunlight को वो capture कर सकें. The broad leaves also help water to evaporate easily, thus keeping the plants cool during the summer. This is one of the advantages of the broad leaves. Most trees have thick barks and shed their leaves in the autumn and grow new leaves in spring. Autumn में उनकी leaves shed हो जाती हैं और spring में उनकी नई leaves आती हैं. पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि अपनी लीव्स कब शेड करते हैं? समर मंथ्स में शेड करते हैं, गर्मी के दिनों में. और उनकी न्यू लीव्स कब आती हैं? रेनी सीजन में आती हैं. सो द ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन द ऑटम और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज. जैसे कि वहाँ पे हमने पहाड़ों पे क्या देखा था, माउंटेन पे एवरग्रीन ट्रीज, क्योंकि वो पूरे साल में कभी भी अपनी लीव शेड नहीं करते हैं. बट यहाँ पर लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ डेसिडियस ट्रीज के, तो टीक, सीशम, साल, ये सारे जो ट्रीज हैं, these are the trees which actually shed their leaves in the autumn or during the dry season. So these trees comes into the category of deciduous trees. Right? Now coming to the third type, desert plant. अब डेजर्ट तो आपको पता है कैसा होता है. डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एरियाज विथ वेरी लिटिल वाटर. तो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो और बहुत कम पानी हो, तो वहाँ प्लांट को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि वो कम से कम पानी में सरवाइव कर सके, ड्राई से ड्राई कंडीशन में उसको प्रॉब्लम ना हो. सो अब हम ये देखते हैं कि उस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाते हैं, या व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टेशन दे गो थ्रू to suit to that habitat. So some regions in India such as Rajasthan are hot and dry, you all know this. So there is very little water and the soil is also sandy. Since there is very little rainfall in desert, plant growing there have adaptation that help them to conserve water. तो वहाँ पे जो plant होते हैं वो उनमें ऐसे अडेप्टेशन होते हैं कि वाटर को वो कंजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं. सो प्लांट एक्चुअली अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं.
इन प्लांट्स में क्या होता है, दे हैव वेरी फ्यू लीव्स, उनमें बहुत कम पत्तियां होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल इज कैक्टस प्लांट. कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स जो हैं इट एक्चुअली टर्न्स इनटू स्पाइंस और रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस. जो कांटे होते हैं वो बेसिकली लीव्स होते हैं कैक्टस के. और फोटोसिंथेसिस जैसा हमें पता है कि लीव्स के थ्रू होता है, पर क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है प्लांट का, ये अडेप्टेशन है प्लांट का, तो फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम्स. जो ग्रीन पार्ट है दैट इज द स्टेम पार्ट से फोटोसिंथेसिस होता है, और जो लीव्स है वो सब कांटों में रिड्यूस हो चुकी है. इट हैज़ रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस. द स्टेम जो होता है, आपने देखा है कभी कैक्टस का स्टेम इज़ वेरी फ्लैशी, बहुत फ्लैशी होता है, स्पॉन्जी होता है, बिकॉज द स्टेम स्टोर वाटर एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव थॉर्न्स, कांटे होते हैं सारी जगह. ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल हुआ कैक्टस का, राइट. मैं कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है, क्योंकि वहाँ इतना कम पानी होता है, तो देर आर रूट्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल. बहुत अंदर तक सॉइल में जाते हैं ताकि बहुत लोअर वाटर टेबल से भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें. they grow deep into the soil in search of water. For an example, acacia, सॉरी, एग्जाम्पल इज मिस्क्वाइट बुश. मिस्क्वाइट बुश का जो रूट है, इट एक्चुअली ग्रोज 20 मीटर डाउन इनटू द सॉइल to search the water or to absorb the water. Acacia is also an example of a desert plant. Acacia has a very small leaves. अब इतनी छोटी लीव्स होती हैं तो क्या फ़ायदा है, इट हैज़ द लेस एक्सपोजर ऑफ द सरफेस एरिया एंड इट रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स. क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होगा तो सनलाइट में उनका वाटर लॉस जो है लीव्स से वो कम हो जाएगा. बबूल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ desert plant. I hope desert plant is clear to you all. Now moving to the next slide, and the next type of plant is the plant that grows in coastal region. अब आपको पता है कोस्टल रीजन क्या होता है, सी शोर वाला एरिया, समुद्र के किनारे का एरिया जहाँ सॉल्टी वाटर है, डैम्पनेस है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है. उस एरिया में जो भी प्लांट ग्रो होते हैं वो प्लांट का अडेप्टेशन डिफरेंट काइंड का होता है. सो द इन कोस्टल रीजन्स, you know, the environment is actually hot and damp, right? Humid and salty water is there. So coconut plant grows in these regions. यहाँ पे आपने coconut plants देखे होंगे. And the seeds also carried away by the water. कोकोनट के सीड्स भी वाटर के थ्रू उनका डिस्पर्जल इधर से उधर हो जाता है, एंड इट एक्चुअली रिक्वायर्स हाई वाटर. इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. पाम ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट और द ट्री दैट ग्रोज इन कोस्टल रीजन. Now, fifth is the plant that grows in marshy areas. What do you mean by marshy? मार्शी का क्या मीनिंग होता है, राइट? Marshy means, marshy is the soil having very clay like sticky and wet kind of soil. दलदल वाली जो ज़मीन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट, दैट इज़ नोन एज द मार्शी लैंड. एंड कोस्टल रीजन्स के आसपास का एरिया कई बार काफ़ी ज़्यादा मार्शी एरियाज़ होता है. ये जो मार्शी एरियाज़ के जो सॉइल हैं इनके पास एयर इतना नहीं होता उस सॉइल में, सो दैट द रूट कैन रेस्पायर, या रूट उसमें रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स क्या होंगे, they cannot breathe easily. Why they cannot breathe easily? Because that have a waterlogged soil.
वाटर लॉक्ड सॉइल होता है तो देयर रूट्स कैन नॉट ब्रीथ ईजिली इन द वाटर लॉक्ड सॉइल. सो क्या होता है फिर उनमें कुछ तो अडेप्टेशन करेगा ना रूट सो दैट इट कैन ब्रीद एंड कैन लिव अ लाइफ देयर, अपने आप को वैसा अडेप्ट करने की कोशिश करेगा. सो दे डेवलप अ स्पेशल रूट known as the breathing root or the respiratory root. Respiratory root या breathing root इन्हें कहते हैं, which grows above the soil, जो soil के ऊपर उगते हैं. You can see this. तो वो soil के ऊपर उगते हैं so that it can breathe. So examples कौन कौन से हैं इनके? The examples are the mangroves या सुंदरी भी बोलते हैं इनको, right? And these roots contain the air holes. इस root में air holes होते हैं so that it can easily breathe, right? So these are the 5 different types of plants, terrestrial plants, डिपेंडिंग अपॉन द लैंड फॉर्म्स. अलग अलग लैंड फॉर्म्स के हिसाब से 5 डिफरेंट काइंड्स के ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. अब ये ग्रास फैमिली जो है इसमें जो प्लांट्स होते हैं ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? जो हम नॉर्मली अनाज खाते हैं वो अनाज जो है वो मोस्टली ग्रास फैमिली से आता है. द सीरियल्स विच वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली. सीरियल्स एंड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट and are the ground into flour which is used for making bread और चपाती. हम सीरियल को प्लांट से सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद उसको हम आटे के फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर उस आटे से हम ब्रेड और चपाती बनाते हैं. और चावल जो है राइस ग्रेन वो हम उसको पूरा उसी तरीके से पकाकर खाते हैं. कुछ स्टेम्स और लीव्स भी हैं जिनको हम प्लांट से उसको निकाल के ड्राई करते हैं, उसमें से ग्रेन रिमूव करते हैं और उन स्टेम और लीव्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज अ फॉडर. फॉडर मीन्स फूड फॉर द एनिमल. वो जो भी बची हुई जो स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका चारा की तरह उनका उपयोग किया जाता है. नाउ शुगर केन इज़ द टाइप ऑफ ग्रास जिनका स्टेम जो है उनसे हम गन्ने का रस निकालते हैं और वो जो जूस है या गन्ने का रस है उससे हम चीनी और गुड़ बनाते हैं. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ examples: rice, wheat and sugarcane, which are the examples of the grass family. Grass is also used as a food for animal. घास आपको पता है बकरी गाय ये सब घास खाते हैं, राइट? शीप, बफेलो, गोट एंड हॉर्सेस ये सभी घास खाते हैं. तो ये जो ग्रास है इट इज़ यूज्ड एज अ फूड फॉर एनिमल्स. बैम्बू, बांस का जो प्लांट है ये एक बहुत बड़ा घास का टाइप है, घास की फैमिली को बिलोंग करता है, ग्रास फैमिली को. और इनसे क्या बनता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर्स. और पाम लीव्स जो हैं और बैम्बू की जो लीव्स हैं, बांस की पत्तियां और पाम की लीव्स से इवन झोपड़ियाँ भी बनाई जाती हैं. और ग्रास जो है इनसे क्या होता है? बास्केट, चेयर और मैट्स भी बनाए जाते हैं. अब जो रूट होती हैं ग्रास की उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? So the roots of the grass actually helps into the holding of the soil particles together. वो जो मिट्टी को बांध के रखती हैं तो उसका क्या एडवांटेज है कि जब भी तेज़ बारिश होगी तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा या तेज़ हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं. तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है वो फर्मली जो होता है रूट से वो टाइटन होकर रखा रहता है उस जगह पे, वहाँ पे टाइटन हुआ रहता है सो दैट इट कैन नॉट बी ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड और द रेन. तो सॉइल इरोजन को हम इस तरीके से अगर प्रॉपरली ग्रास का ग्रोथ है तो वहाँ पे इट प्रिवेंट
the soil to get eroded by the wind or by the rain. और कुछ घासें ऐसी भी होती हैं, देर आर सम काइंड ऑफ ग्रास, जो मेडिसिन्स बनाने के भी काम में आती हैं. These all points are mentioned in your book. So these are the certain examples of the grass family. Now the last topic of your book, where some special plants have been mentioned. Insectivorous plant. नाम से क्या लगता है आपको? Insectivorous plants में plants जो insect खाते हों. सुना है आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में? जी हाँ, ऐसे भी प्लांट्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं. और ये जो प्लांट हैं ये एक्चुअली बहुत पुअर मिनरल्स में होते हैं. तो वो अपनी मिनरल जो डिप्लीटेड होता है उनके अंदर, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके उनको कंज्यूम करते हैं और उस मिनरल की डेफिशिएंसी को वो फुलफ़िल कर लेते हैं. सो द प्लांट्स दैट ग्रोज in the soil that is poor in minerals, such plant trap insects and consume them to meet their mineral requirement. Such plant are called insectivorous plants. और कुछ examples क्या हैं insectivorous plants के? Are the pitcher plant is one of the example which you can see in this slide. There are examples like sundew plant and Venus flytrap plant. Though the insectivorous plants are usually green. ये green होते हैं और अपना food खुद ही बनाते. They do photosynthesis. But just to fulfill the requirement of certain mineral, they trap the insect and get that particular mineral from those insects. Right? So these are the three examples which are mentioned here is the pitcher plant, sundew and Venus flytrap. अब पिचर प्लांट को अगर हम डिस्कस करें, पिचर मीन्स एक जग लाइक स्ट्रक्चर है. और उस पिचर में क्या होता है? उस पिचर में नेक्टर एक फिल्ड होता है. नेक्टर इज सम स्टिकी काइंड ऑफ सब्सटेंस और उस जग का एक लिड भी है, ढक्कन भी है. जैसे ही वो नेक्टर एक्चुअली इतना स्वीट स्मेली होता है कि उस पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होके बैठता है एंड वेरी कलरफुल होता है तो वो फ्लावर, तो वहाँ पे जब इंसेक्ट जैसे ही बैठता है वो स्टिक हो जाता है उस पर्टिकुलर नेक्टर के साथ में. और उसके अंदर जो ये यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिसके कारण वो स्लिप होता होता अंदर चला जाता है और ये लिड क्लोज हो जाता है. और लिड जब क्लोज होता है अंदर उसके डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और वो प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है पिचर. ये आपका पिचर प्लांट का एग्जाम्पल है. सिमिलरली वीनस फ्लाई ट्रैप यू कैन सी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो हाफ में डिवाइडेड है. और जब इंसेक्ट इसके बीच में बैठता है तो ये जो टू हाफ है ये क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर हो जाता है और इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेता है. सिमिलरली ये sundew के जो होते हैं दे हैव अ टेंटिकल्स, लीफ लाइक टेंटिकल्स दैट आर कवर्ड विथ स्टिकी सब्सटेंस. उनके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है उनके टॉप पे. और जब कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो इट स्टिमुलेट दैट स्टिकी सब्सटेंस, जिससे वो उस इंसेक्ट का ग्रिप को टाइट कर लेता है और इंसेक्ट उसमें डाई हो जाता है और वो उसके मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. So these are the different kind of insectivorous plants. See, this is how the insectivorous plant work. You can see this is the example of the Venus flytrap and how it is working. This is one of the working model example of the insectivorous plants. These all are there in your book. Apart from these insectivorous plants, there are few more types of plants which comes under the category of parasites. You know what are parasites? The certain examples are of the parasites are dodder, cuscuta. How these plants survive? It survives on the other plant. वो दूसरे plant के ऊपर survive करते हैं. They actually take the nutrition from the host plant for its survival. Saprophytes are the
mushroom, mold, they absorb the nutrient from the dead and decay matter of the plants. सो ये भी कुछ अलग कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ एंड यू ऑल नो हाउ प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस, हाउ प्लांट आर यूजफुल फॉर अस. It is used for food, for medicine, for fiber, for oil, and for cotton, jute, flax, wood. There are enormous और the number are countless. इतनी सारे इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स के हमारे लाइफ में. So plant in a nutshell is different types of the plants are available in the world. There are number of uses of plant, and plant get adapted themselves as per their surroundings, and we all have studied about the adaptation of plant in this chapter, whether they are adapted in the water adaptation, which is known as aquatic plant, and the adaptation on the land, which is known as terrestrial plant. Thank you for watching this. I hope the chapter is clear to you all. Thank you.